نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ایمان و عقائد کی تحفظ اور اصلاح کی غرض سے میں نے یہ بیان یوٹیوب پہ جاری کیا ہے تاکہ جو لوگ اپنے ایمان و عقائد میں حق پر ہیں وہ اس پر مستحکم رہے، اور جن لوگوں کے عقائد میں کچھ خامی ہو ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو حق کے متلاشی ہو اسے راہ حق نصیب ہو۔ اس لیے کہ جن کا ایمان و عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہی مومن اور مسلمان ہے، اور جن کا ایمان اور عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ مومن نہ تو وہ مومن ہے اور نہ مسلمان، بلکہ وہ کافر و مرتد ہے۔ ایسے لوگ کتنی ہی نماز ادا کریں، کتنا ہی روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سب بیکار ہیں۔ سامعین حضرات، آج کے پرفتن دور میں بے شمار فرقے باطلہ نے جنم لیا ہے، جن کی وجہ سے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ وہابی دیوبندی ہے جو سب سے بدتر اور خطرناک ہے۔ اس کا ایمان و عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اس فرقہ کے بانی و قائدین سب کے سب اللہ اور اس کے رسول اور بزرگان دین کے بارگاہ کے گستاخ ہیں اور کافر و مرتد ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ وہ ہماری طرف بالکل مجبور اور بے بس بشر ہیں۔ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی و رسول اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شیطان سے کم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کی طرح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار خرافات اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، لہذا تمام مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں، اس کے جلسے اور اجتماع میں نہ جائیں، اس سے کچھ نہ سیکھیں اور ان کی نہ کوئی بات سنیں، بلکہ ہمیشہ ان سے دور رہیں۔ آج میرا موضوع علم غیب سے متعلق ہے۔ تمام اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور بے شمار عطا فرمایا ہے۔ علم ما کان و ما یکون، روز اجل سے قیامت تک، بلکہ جنتی کے جنت میں اور دوزخی کے دوزخ میں داخل ہونے تک کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ سامعین، اب آپ قرآن و حدیث کا حکم سنیں اور فیصلہ کریں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے چوتھے پارہ کے رکوع نمبر 9 آیت نمبر 178 پر ارشاد فرماتا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تم کو غیب کا علم عطا فرما دے، لیکن رسولوں میں جس کو چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔
और 29वां पारा सूरह जिन में रुकू नंबर 12 आयत नंबर 25 पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, यानी गैब का जानने वाला रब तो सिर्फ अपने पसंदीदा रसूलों को ही गैब पर काबू देता है। इन आयतों का साफ और सरी मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इल्म गैब के लिए रसूलों को चुना है, सबको नहीं। इसी तरह इल्म गैब देने के लिए रसूलों को पसंद फरमाया है, सबको नहीं। 5वां पारा सूरह निसा में रुकू नंबर 14 आयत नंबर 112 पर अल्लाह ताला फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आपको ऐ मुस्तफ़ा अहकाम शरअ और इल्म गैब में से जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया, और अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। यानी साफ मतलब इसका यह है कि इल्म दीन और अहकाम शरीयत, इल्म गैब, हर तरह के दीनी और दुनियावी उल्म फ़नून को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और 30वां पारा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, ये रसूल गैब बताने में बखील नहीं है। मालूम हुआ कि हमारे रसूल गैब दां है और गैब बताते हैं, बखील नहीं है। अब फरमान खुदाबंदी के बाद हदीस रसूल समात फरमाएँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 453 में है, अन उमरा क़ाला क़ामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियह। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम लोगों के मजमा में बयान करने खड़े हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदाए आफरीनत से जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे हालात की हमें ख़बर दे दी। सुनने वालों में जिसने उस बयान को याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। इस हदीस पाक का साफ मतलब यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक, बल्कि उससे भी आगे जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे हालात एक एक करके बयान फरमा दिया। लेकिन सहाबा कराम ने सभी बात तो याद ना रख पाए, बल्कि कुछ याद रहा और कुछ भूल गए। सामईन किराम, ज़रा दिल से बताइए, क्या यही अक़ीदा हम अहले सुन्नत बरलियों का नहीं है जो इस हदीस पाक में बयान हुआ? अब दूसरी हदीस पाक सुनिए। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 390 सफ़ा नंबर 390 में अल्लाह है, अन अबी ज़ैदिन यानी अमर अन अबी ज़ैदिन यानी अमर अब्न अख्तबल अंसारी क़ाला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फजरा व सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता हज़रत ज़ुहर फ़नज़ला फ़सल्ला सुम्मा सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता हज़रत असर सुम्मा नज़ला फ़सल्ला सुम्मा सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता गरबत शम्स फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुआ काइनुन फ़अलमना अफ़ुज़ुना। हज़रत अबू ज़ैद यानी अम्र बिन अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और मेंबर पर खड़े होकर हमारे सामने तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज़ का वक्त आ गया। फिर मेंबर से उतरकर नमाज ज़ुहर अदा फरमाई। उसके बाद मेंबर पर तशरीफ़ ले गए, फिर हमारे सामने तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त आ गया। फिर मेंबर से उतरकर नमाज असर पढ़ाई। उसके बाद मेंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि सूरज डूब गया।
तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस तकरीर में जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है तमाम वाक़यात की खबर दे दी। तो हम में से बड़ा आलिम वो है जिसे रसूल की सबसे ज़्यादा बातें याद हैं। इस हदीस का साफ मतलब तो यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मंबर पर खड़े होकर फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब तक मुसलसल तकरीर फरमाते रहे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। उस तकरीर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ माजी में हो चुका है और जो कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है, यानी इल्म मा काना व मा यकून को बयान फरमा दिए। सामईन किराम, ज़रा इंसाफ से बताइए कि वही अकीदा अहले सुन्नत बरलियों का नहीं है जो हुजूर ने इस हदीस पाक में बयान फरमाया है। अब आखिर में इल्म गैब से मुतल्लिक कुरान और हदीस का हुक्म सुनिए, नतीजा खुद निकल कर आपके सामने आ जाएगा और आप खुद फैसला फरमाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर में है, रावी बयान करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि किसी गज़वा में तशरीफ़ ले गए, असनाए सफ़र किसी सहाबी का ऊँट गुम हो गया। वो अपने इल्म गैब के अकीदा के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर फरियाद किया और गैबदान रसूल से अपने गुमशुदा ऊँट का पता दरियाफ्त किया। गैबदान रसूल ने इल्म गैब की रोशनी में फरमाया, तुम्हारा ऊँट फ़लाँ वादी फ़लाँ मकाम पर है। वो सहाबी उल्टे पाँव सरकार के बताए हुए मकाम पर रवाना हो गए। अब इधर की कहानी सुनिए। लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी थे। जब उसने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुमशुदा ऊँट के बारे में ये खबर दी है, वो फ़लाँ वादी में फ़लाँ मकाम पर है, तो उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, वमा युदरी मोहम्मद बिल गैब, मोहम्मद गैब की बात क्या जाने। वमा युदरी मोहम्मद बिल गैब, मोहम्मद गैब की बातें क्या जाने। ये मुनाफिकीन जब मदीना पलट कर वापस आए तो बाद सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह फ़लाँ लोग आपके बारे में कह रहा था वमा युदरी मोहम्मद बिल गैब। जब उनको बुलाकर पूछा तो सब एकदम बदल गए। वो सब एकदम बदल गए और कहने लगे कि हमारी कौम के चंद नौ उम्र लड़कों ने यूं ही मजाक के तौर पर इस तरह की बातें की थी। हम लोग तो हुजूर को गैबदां मानते हैं, हमारा भी वही अकीदा है जो आम सहाबा का है। अभी वो मुनाफिकीन सिपाही दे ही रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर हाजिर हो गए। कुरान की आयतें क्या है? गोया अल्लाह तबारक व तआला का फतवा है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानुकुम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या मजाक करने के लिए अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही रह गया है? बातें ना बताओ, ला तअतज़िरू, बातें ना बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम काफिर और मुर्तद हो गए। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करने वाला खुदा के इस फरमान के मुताबिक काफिर और मुर्तद है। सामईन किराम, ज़रा इंसाफ से बताइए कि बरेली के अहमद रज़ा ने इल्म गैब रसूल के इनकार करने वाले देवबंदी वहाबी को काफिर कहा है, तो क्या बेजा किया है? ये तो खुद कुरान ने उन्हें काफिर कहा है। मैंने रसूल के इल्म गैब से मुतल्लिक कुरान और हदीस के अहकाम बता दिए, अब फैसला आपको करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।